Hi, good morning everyone who all are present here. This is Shalini Poddar from Wokhart Global School, Aurangabad, Maharashtra, and I'm going to take a free webinar on misconceptions of dieting with our guest, Mr. Digvijay Singh. I'll give you a brief about him, of our guest. Present now, he's working with Ganasthali Group of Institute, Itawa. Okay, and he completed his MPEd from Noida College of Physical Education, and he is a national level judo player, state level wrestling player, and he has participated in the karate at the international level. He has completed his NIS in health and fitness and judo. We welcome you, sir. Thank you, ma'am. Hello, everyone. So today we are going to, me and sir, we are going to discuss about the misconceptions of dieting. And if you have any queries, please do post in the chat box. At last, we are going to answer it. Okay. So just give me 1 minute. I'll share one PPT. Okay. Um, Sir, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. So over to you, sir. Okay. Hello, everyone. Today's our topic is diet, balanced diet, misconception of diet. ओके तो मिसकंसेप्शन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है, हमारे बीच में है, रूमर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं वो चीज़ें, और लोग किसी अ, किसी भी वजह से एक दूसरे पे उन बातों पर भरोसा करने लग जाते हैं, जो कि मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे फैले हुए हैं डाइट को लेकर। ठीक है, पहली चीज़ तो डाइट। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. स्लाइड चेंज करिए। Yes, sir. I'm doing that. Yeah. So, ओके, sir, can डाइट। I read it for you? यस मैम, थैंक यू। Diet is referred to the food and drink a person consumes daily, and the mental and physical circumstances connected to eating. Nutrition involves more than simply eating a good diet, it is about nourishment on every level. It involves relationship with family, friends, nature, means the environment, our bodies, our community, and the world. Yes, sir. Over to you. Okay, in simple language, whatever we consume in our diet, in our food, in our meal, that is called diet. अब जो भी अपने डाइट में जो भी फूड हम गेन करते हैं, जो भी हम एक्वायर करते हैं, वो सभी चीज़ें आपके डाइट के अंडर में आती हैं। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी भी वर्किंग मशीन को वर्क करने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे थाउज़ेंड्स ऑफ वर्किंग प्रोसेस होती हैं, जिन्हें स्मूथली वर्किंग प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है हमें एक प्रॉपर डाइट की, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की, एक प्रॉपर फ्यूल की, जो कि हमें मिलता है हमारी एक प्रॉपर डाइट से। ठीक है, तो डाइट सिंपल सी चीज़ है, जो भी हम अपनी मील में एक्वायर करते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या आफ्टरनून फूड में या फिर नाइट में। तो वो सारी चीज़ें आपकी, आपने जो भी चीज़ें कंज्यूम की हैं, वो सारी आपकी डाइट है। नेक्स्ट हेलो। स्लाइड मैम। Yes, sir. Mm. Balanced diet. A diet consisting of a variety of different types of food and providing adequate amount of nutrients necessary for good health. A balanced diet is a diet that contains different kind of food in certain quantities and proportions so that the requirement for calories, proteins, minerals, vitamins and alternative nutrients is adequate and a small provision is reserved for additional nutrients to endure the short length of strength. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं क्या है बैलेंस्ड डाइट। जैसा कि वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, 2 वर्ड हैं
यहाँ पर बैलेंस और डाइट। बैलेंस आप सारी चीजें जानते हैं, किसी भी चीज को हमें प्रॉपर तरीके में, प्रॉपर क्वांटिटी में मेंटेन करने को हम बैलेंस कहते हैं। और डाइट यानी कि हमें डाइट में हम जो भी चीजें, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनको हमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में मेंटेन करना होता है। हम जो भी अपनी डाइट में एक्वायर कर रहे हैं, जो भी फूड, देखिए क्या है कि हमारी बॉडी की बहुत सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। यहाँ हेलो सर। हेलो यस सर। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, यस सर, वी कैन हियर यू सर। ओके। तो जो भी हम हमने, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट वर्किंग प्रोसेस होती हैं। कहीं पर न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने का काम होता है, कहीं पर हार्मोन्स को मेंटेन करने का काम है, कहीं पर नर्व इम्पल्सेस को मेंटेन करने का, सर्कुलेट करने का काम है, या फिर हमारी सेल्स को मेंटेन करना है, उनको रिपेयर करना है, या फिर हमारी बोन्स हैं उनको रिपेयर करना है, उनकी बोन डेंसिटी को मेंटेन करना है, हमारे आई साइट को, हमारी स्किन को, हेयर्स को, नेल्स हैं, ये सारी इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होती हैं जिनके अलग अलग फ्यूल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है और प्लेन है, इन सबके अलग अलग डिफरेंट फ्यूल होते हैं जो कि उसके सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है उसके भी डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं जिन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें उनकी एक बैलेंस अमाउंट में जरूरत होती है। किसी भी चीज को आप ज्यादा अमाउंट में लेंगे वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। तो इसलिए डाइट जो है, उस डाइट में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो भी आप डाइट लें उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो और राइट प्रोपोर्शन में, राइट क्वांटिटी में होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रोटीन लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रोटीन जो होता है वो सेल्स डेवलपमेंट का काम करता है, उनको रिपेयर करने का काम करता है, हमारे मसल्स को डेवलप करने का काम करता है। और सेकंड होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना ड्यूरिंग एनी ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाले फ्यूल की जरूरत होती है। तो अगर आप सोचे कि केवल हम प्रोटीन अपनी डाइट में एक्वायर करेंगे तो वो भी आपका बैलेंस खराब करेगा, यानी कि आपकी बॉडी में वर्क करने के लिए एनर्जी नहीं रहेगी। तो प्रोटीन हमें अलग अमाउंट में चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी हमें डिफरेंट अमाउंट में बॉडी में हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी मिनरल्स, जैसे कि जानते हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, कई सारे मिनरल्स हैं, कई सारे विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई, के एंड बी एंड सी। ठीक है, तो ये विटामिन्स हैं, इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिनरल्स, मिनरल्स भी आ जाते हैं मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, क्लोराइड, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन। इस तरीके के मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग को स्मूथ तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो बैलेंस डाइट का हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी होगी बॉडी में तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। अब जैसे कि फाइबर, फाइबर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, ये भी हमारी डाइट में, बैलेंस डाइट में ऐड होता है, लेकिन मेनली लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो फाइबर कौन और सा ये फूड हुआ सर, लाइक फाइबर क्या है, फाइबर? फाइबर इस तरीके से, हेलो, यस सर। सर फाइबर्स में यस कौन मैम, कौन से फूड्स आते हैं वो आप बता सकते हो? कैन यू टेल अस? होल ग्रेन्स वगैरह है, होल ग्रेन्स वगैरह है, व्हीट है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, अनाज वगैरह है जो है, इनमें काफ़ी अमाउंट में फाइबर्स होते हैं। ये क्या है कि अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको स्मूथ वर्किंग में हेल्प करता है। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी स्मूथनिंग में हेल्प करता है, उसकी वर्किंग में हेल्प करता है। दूसरी चीज, ये आपकी एपेटाइट को कम करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि आपकी एपेटाइट है, भूख है, उसको ये पूरी तरीके से मिटाने का काम करता है। आप एक छोटे से अमाउंट में उसमें फाइबर नहीं होगा
छोटा सा अमाउंट आप लेंगे, वो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर देगा, लेकिन आपका जो एपेटाइट है वो कंप्लीट नहीं होगी। एपेटाइट आपको होगी, ठीक है, आपकी भूख जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, तो आपको और भूख लगती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी भूख खत्म करने का काम करता है फाइबर्स के थ्रू। ओके, तो ये है आपकी बैलेंस डाइट। किसी भी डिफरेंट मिनरल्स, फाइबर्स एंड न्यूट्रिशंस को एक कंप्लीट डिफरेंट अमाउंट में, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके अमाउंट में लेने को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। Shall I go to the next slide, sir? यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं, जैसा कि आपको इसमें ट्रायंगल में यहाँ पर आपको शो हो रहा है पिरामिड में, फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। हर एक का अपना एक अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लिमिट है। तो फैट है, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर, इनको हम लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, कम अमाउंट में लेते हैं, माइक्रो में। ओके, उसके बाद आपका आता है जैसे कि अब फैट है, ऑयल है, सॉल्ट है, ये भी आपके नर्व इम्पल्सेस को सॉल्ट क्या करता है, आपके नर्व इम्पल्सेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। शुगर आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एक एनर्जी सोर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फैट और ऑयल, ओके, ये भी आपके बॉडी में फैट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, एनर्जी सोर्सेज को भी बढ़ाते हैं, और के साथ साथ जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं इनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है फैट। उसके बाद है आपका मिल्क एंड अल्टरनेटिव्स। तो मिल्क प्रोडक्ट जो है, डेयरी प्रोडक्ट जो वगैरह जो है आपके, इनमें मेनली आपको देखने में मिलेगा प्रोटीन, ठीक है, ये आपके प्रोटीन सोर्स है। चिकन है, ये आपके वेज, और साइड में आप देख सकते हैं नॉन वेज सोर्सेज अवेलेबल है वहां पर। तो आप चीज, बटर, मिल्क, योगर्ट, ये सारी चीजें लेंगे। इन सोर्सेज से आपको वेज प्रोटीन सोर्सेज आपको इसमें से मिल जाएंगे। इसका अगर आप अल्टरनेटिव नॉन वेज में देखते हैं, नॉन वेजिटेरियन में, तो आपको मीट है, फिश है, एग अल्टरनेटिव्स हैं। इसमें से भी फिश जो है वो लीन प्रोटीन होता है इसमें। तो मीट वगैरह के साथ में आपको अदर फैट वगैरह भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिश के साथ में आपको लीन प्रोटीन मिल जाएगा। तो इसमें भी सबसे अच्छा आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी डाइट में आप इसको ऐड कर सकते हैं, वो है आपका फिश। नीचे आप वेजिटेबल्स देख सकते हैं। वेजिटेबल्स के थ्रू डिफरेंट टाइप के आपको मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, जो कि आपकी बॉडी की स्मूथनिंग और बॉडी के डिफरेंट वर्क्स के लिए। Sir, your video is stopped, I guess. देख लीजिए इन sir. सब चीजों को, Yes, sir. यस मैम। Actually, I guess some network issue happened, so your video got stuck. So I want to ask sir, like ये हमें daily खाने चाहिए या फिर कभी if we skip fat, we can only eat vegetable or meat, और ये या फिर सारी चीजें होनी चाहिए हमारे मील में थोड़े थोड़े। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब ही ये है कि आपको हर एक चीज को एक लिमिटेड अमाउंट में डेली लेना है, ठीक है। बट अगर समटाइम मैं लंच किसी कर रही प्रॉब्लम्स की हूँ, वजह, अगर मैं डिनर कर रही हूँ और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, तो वो तीनों मील में मेरे ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, इज इट? यस मैम, ठीक है, यही सेम चीज है कि अगर डिफरेंट टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है और लंच का टाइम है, तो इसकी भी एक लिमिट है। जैसे कि आपको मॉर्निंग में आपको कार्बोहाइड्रेट जरूर ऐड करना चाहिए, ठीक है। वो आपकी मॉर्निंग जो स्टार्टिंग होती है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। उसके बाद आप मील है आफ्टरनून में, उसमें आप सारी एक कंप्लीट मील को ऐड करेंगे, ठीक है। जो आफ्टरनून मील है आपका, उसमें आपको एक सारी चीजें, एक कंप्लीट डाइट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नाइट का टाइम है, आप उसमें हैवी प्रोटीन को अवॉइड करें, हैवी कार्बोहाइड्रेट को भी अवॉइड करें, ठीक है। आपको एक लिमिट में लेना है। हैवी अगर वर्कआउट करने वाले आप लोग हैं, आपका वर्कआउट जो है इंटेंस वर्कआउट आप करते हैं, तो उस समय आप प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर नॉर्मल पर्सन है,
नॉर्मल वर्किंग पर्सन है तो आपको नाइट में डाइट में कैफीन वगैरह और जो प्रोटीन है, हैवी प्रोटीन, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। Sir, which हैवी foods are प्रोटीन there in caffeine? लाइक कॉफी, चाय, Okay. चॉकलेट, So at night, okay. Yeah. दीज़ आर द थिंग। ठीक Okay. है? तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये अलर्टनेस को बढ़ाते हैं और आपको रात में सोने में, स्लीपिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। Shall I go to the next slide, sir? यस मैम। Here we can see a balanced plate that sir अभी आपने explain किया था. We can see here that carbohydrates, protein, यस। fats and balanced plate. ठीक है, ओके। तो आप जैसा कि ये प्लेट में आप देखते हैं 70% कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के काफी सारे सोर्स हैं। फ्यूल हमें ज्यादा लगेगा, पूरे वर्किंग प्रोसेस जो है हमारी डेली का हमारा जो रूटीन है उसमें आपको फ्यूल की जरूरत ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर 70% कार्बोहाइड्रेट आपको शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको 20% प्रोटीन और फैट चाहिए। ठीक है, और 10% अदर फैट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से अपनी बैलेंस डाइट जो है इसको मेंटेन करना है। Okay, sir. Shall I go to the next slide? यस मैम। Why a balanced diet is important? A balanced diet supplies the nutrients our body needs to work effectively. Without balanced nutrition, our body is more prone to diseases, infection, fatigue, and low performance. Children who don't get enough healthy food may face growth and developmental problems, poor academic performance, and frequent infections. They can also develop unhealthy eating habits. They may persist into adulthood. Without exercise, they will also have a high risk of obesity and various diseases that make up metabolic syndrome, such as type 2 diabetes and high blood pressure. According to the Center for Science in the Public Interest, 4 of the top 10 leading causes of death in the United States are directly linked to diet, and the diseases are heart disease, cancer, and stroke. ओके, व्हाई अ बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट। बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके कई सारे रीजंस है। सबसे पहले तो आपके ये कई तरीके की डिजीज से प्रिवेंट करता है और आपकी हैबिट्स जो हैं उनको भी खराब होने से रोकता है। बैलेंस डाइट ना मिलने की वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, बॉडीली डिजीज, ठीक है, फिजिकल डिजीज जो है वो आपको बच्चों में स्टार्टिंग फेज से देखने को मिलती हैं। क्वाशियोरकर, मरासमस, दीज आर द डिजीज जो कि आपके प्रोटीन की कमी की वजह से मेनली बच्चों में देखने को मिलती हैं। सूखा रोग जिसे हम कहते हैं, तो ये अफ्रीका साइड में इसका काफी ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगी। वहां पर बच्चों में डाइट की बहुत ज्यादा कमी होती है, डाइट उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है जिसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद शुगर प्रॉब्लम्स हैं, सडन वेट गेन प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, हार्ट हार्ट डिजीज है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेना या फिर फैटी फूड लेना, फैट वाली डाइट लेना, ये सारी चीजें क्या है आपकी कई सारी डिजीज जो है बॉडी में उनको बढ़ाती हैं, प्लस आपकी इम्यूनिटी को भी ये काफी हद तक कम कर देंगी। बॉडी की जो आपकी इम्यूनिटी है वो काफी कम हो जाएगी जिससे कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी किसी भी डिजीज के लिए इजीली अवेलेबल होगी। तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी उन डिजीज को कवर करेगी और आप परमानेंट आपको कोई ना कोई बीमारी वगैरह, कोई इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी अपनी बॉडी में। या फटीग है, बहुत ज्यादा थकान आपको परमानेंट देखने को मिलेगी, हील पेन है, लो परफॉर्मेंस है, तो ये सारी चीजें आपकी बैड डाइट की वजह से हो सकती हैं। अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा फैट है तो भी बच्चे में वेट गेन होगा और उसके साथ साथ उसमें वीकनेस भी बॉडी में आएगी, क्योंकि फैट बॉडी में तो बढ़ रहा है लेकिन वर्क करने के लिए, बॉडी को एक्टिव बनाने के लिए मसल्स की जरूरत होती है जो कि आपकी बॉडी के वेट को मूव करेंगे यहाँ से वहां। तो केवल फैट बढ़ने से बॉडी का वजन एक तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन उस वेट को उठाने के लिए जो जिन मसल्स की जरूरत होती है वो मसल्स आपकी वैसी की वैसी हैं। तो ये बॉडी में बहुत सारी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। या बच्चों में क्या है, अगर अच्छी डाइट उनको नहीं मिलती है, घर पे भी अगर प्रॉपर डाइट आप उनको बच्चों को बनाकर देंगे तो वो अदर चीजों से
जो फैटी फूड है या जंक फूड है, इस तरीके के फूड को रेगुलरली बाहर से खाने से बचेंगे। लेकिन अगर आप जैसे कि ज़्यादातर हमारे इंडियंस में देखा जाता है कि बच्चों का जो ब्रेकफ़ास्ट है वो स्किप हो जाता है। पेरेंट्स जो है वो कई घरों में ब्रेकफ़ास्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हैं या ब्रेकफ़ास्ट होता ही नहीं है कई लोगों के यहाँ पर। इससे क्या होता है, बच्चे को जब भूख लगेगी, सुबह उसे भूख लगेगी तो वो बाहर जाके कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो खाएगा जाके और वो डेली रूटीन से उन चीज़ों को खाएगा, जिससे उसमें फैट का परसेंटेज उसमें बढ़ेगा और भी इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स फिर आगे चल के उस बच्चे में देखने को मिल सकती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि जो स्ट्रीट फूड है, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। बहुत ही खराब क्वालिटी के वो स्ट्रीट फूड होता है। उसमें वो बहुत ही खराब क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं और उसकी जो भी उसमें मटेरियल वो यूज़ करते हैं, वो भी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का मैक्सिमम टाइम वो यूज़ करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। Next slide, sir. यस मैम। Okay, what to eat for a balanced diet? As you already explained, sir, I'll just do the reading. आपने already explained कर दिया. I'll just do the reading. Okay, a healthy balanced diet will usually include the following nutrients: vitamins, minerals, and antioxidants, carbohydrates including starch and fiber, proteins, healthy fats. A balanced diet will include a variety of foods from the following group. They are fruits, vegetables, grains, dairy products, protein foods. Example of protein food includes meat, eggs, fish, beans, nuts, and legumes. People who follow a vegetarian diet will focus entirely on plant-based foods. They won't eat meat, fish, or dairy, but their diet will include other items that provide similar nutrients. Tofu and beans, for example, are plant-based sources of proteins. Some people are intolerant of dairy, but can still build a balanced diet by choosing a variety of nutrient-rich replacements. इसमें से मैम फाइबर को मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। Yes, sir. फाइबर क्या है? फाइबर फूड का एक अनडाइजेस्टेड पार्ट है, इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये सॉल्यूबल होता है और अनसॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल है और कुछ अनसॉल्यूबल है। तो ये हमारे जो फूड में हम इसको जैसे कि हम डाइट में लेते हैं, तो ये किसी भी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। ये फूड का वो पार्ट है जो कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। ये आपकी एपेटाइट को कम करेगा, ठीक है? जो आपकी भूख है, उसको शांत करेगा। Okay. दूसरा आपकी कई तरीके की आजकल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एक जनरल प्रॉब्लम है लोगों में, ये हमें देखने को मिलती है। तो कॉन्स्टिपेशन से आपको अगर आपकी डाइट में फाइबर है, तो आप इससे बच सकते हैं कॉन्स्टिपेशन से, ठीक है? इट रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल आल्सो, ठीक है? जो ब्लड शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन होता है, कई लोगों में आपने देखा होगा, उनका ब्लड शुगर लेवल अप डाउन कई बार होता रहता है। तो अगर आप 30 ग्राम फाइबर डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल के फ्लक्चुएशन को भी प्रिवेंट करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं फाइबर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको हम सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं। कई बार इस पे हम ध्यान नहीं देते। Okay. Next slide. यस मैम। Yes. Nutritional value of milk, 100 grams. ओके। इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल्क में कितनी है, ठीक है? मिल्क में आपकी काफ़ी सारी इसमें वैल्यूज़ हैं। देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है इसमें, कैलोरीज़ 61, वाटर का परसेंटेज जो है वो 88% है, प्रोटीन 3.2 ग्राम। ये जो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देख रहे हैं, ये हम पर 100 ग्राम में देख रहे हैं। ओके, शुगर 5.1 ग्राम, फैट 3.3 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 1.87 ग्राम, मोनोअनसैचुरेटेड 0.81 ग्राम, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट 0.2 ग्राम, ओमेगा 3, ओमेगा 6, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है? सॉल्यूबल और अनसॉल्यूबल, ठीक है? कैसीन जो होता है वो आपका इनसॉल्यूबल है वाटर के मिल्क के साथ, और वाटर सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन है वे प्रोटीन, ठीक है? अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं फैट दिया हुआ है,
फैट को आप लोग काफी गलत तरीके से समझते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। तो फैट हमेशा बुरा नहीं होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट, जैसे हम कह सकते हैं गुड फैट और बैड फैट, ठीक है। सैचुरेटेड फैट जो है इसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें, ठीक है। लोग हमेशा पूरे फैट को ही, पूरी फैट की जो कैटेगरी है उसको ही हमेशा बुरा समझ लेते हैं कि ये फैट जो होता है वो बुरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैट जो है वो कई तरीके की हमारी जो एक्टिविटी है, इंटरनल एक्टिविटीज हैं, उनमें भी हेल्प करता है। हमारे जो अंदर हार्मोनल बैलेंस है और इस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज में फैट जो है वो हेल्प करता है। आपको बचना है सैचुरेटेड फैट से। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है एंड पॉली अनसैचुरेटेड, दीज आर द गुड फैट। तो आपको ये फैट अगर कोशिश करिए, आपको अपनी डाइट में एक्वायर जरूर करना है। ये आपके फैट जो है ये आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, दूसरा आपके एनर्जी सोर्स को रिजर्व रखते हैं, तीसरा जो आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, आपकी बॉडी को वार्म करते हैं। तो फैट जो है वो भी काफी अच्छी चीज होती है, बस हम उसको गलत तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब पहले तो आप ये समझिए अमीनो एसिड्स क्या है। हम जो भी डाइट में प्रोटीन एक्वायर करते हैं, हमारी बॉडी डायरेक्टली उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। तो उनको बॉडी हमारी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो बॉडी क्या करती है, पहले उसको पेप्सिन के थ्रू, पेप्सिन जो होता है हार्मोन, वो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है और फिर उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो 23 अमीनो एसिड्स हैं, उनमें से आपके जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो है उनको आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। इनमें है एक आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और लाइसिन, थ्रेओनाइन, हिस्टिडीन, मेथियोनाइन, फेनिलालाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, इन्हें हम BCAA के नाम से भी जानते हैं। जिम वाले जो लोग हैं, जो जिम करते हैं जो लोग, वो जानते होंगे इस चीज को, या वो समझते होंगे, या उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी होती है। BCAA, ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड्स, ओके। ये आपके 20 अमीनो एसिड्स दिए हैं, उनमें से 9 एसेंशियल अमीनो जो अंडरलाइन है आप देख सकते हैं, ये अमीनो एसिड्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये डिफरेंट एक्टिविटीज में भी आपकी हेल्प करेंगे, उसके साथ साथ आपकी मसल बिल्डअप में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट स्लाइड में न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग। ओके। एक और मिसकंसेप्शन है कि एग खाने से वेट बढ़ जाता है, लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का मिसकंसेप्शन ही है। एग को भी हमने बदनाम कर किया हुआ है, लेकिन देखते हैं कि जरा एग की न्यूट्रिशनल वैल्यू कहाँ कितनी है, क्या है। एग व्हाइट और एग यॉल्क, ये एग में दो पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं यहाँ पर एग में। एग में जो बीच का पार्ट है वो यॉल्क है, और जो आउटर लेयर है वो व्हाइट, एग व्हाइट बोलते हैं मुझे। एग व्हाइट में, एग व्हाइट जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, और जो इंटरनल पार्ट है यॉल्क, वो आपका फैट सोर्स है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल फैट इसका, सैचुरेटेड फैट भी है इसमें, कोलेस्ट्रॉल भी है, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके के से बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है एग में, तो हमें इसे भी अपनी डाइट में जरूर नेसेसरी तरीके से इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में The final misconceptions we have. ओके, सो लास्ट टॉपिक इज अवर लास्ट टॉपिक ना मैम। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो फाइनली जब हमने इन सब चीजों को समझ चुके हैं, तब अब हम समझ में आएगा कि मिसकंसेप्शन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, थिनर इज बेटर, ये एक मिसकंसेप्शन है मोस्टली अमंग द गर्ल्स। उनको जो फिगर मेंटेन करने की बात होती है, बॉडी को मेंटेन करने की बात होती है, उसमें लोगों को लगता है कि हम जितने पतले होंगे हम उतना अच्छे होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आप जितने आप पतले होंगे आपकी मसल्स जो है वो उतनी ही वीक होगी, ठीक है। तो मसल्स वीक होने से आपकी जो कैपेसिटी है वो भी उतनी ही ज्यादा वीक होगी। तो इस चीज का ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो थिन है वो बेटर है। आपको आपका BMI के बारे में आपने सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। उसके थ्रू आप वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप अपने
बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपनी वेट को पता कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ना कि आप अपने मन से ही थिनर को, जो भी थिन पर्सन है उसको आप बेटर समझ लें। तो इस चीज को हमें एक तरीके गलत है ये। अपने बॉडी वेट को हमें अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आई शुड अवॉइड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। लोगों को लगता है कि इससे वेट बढ़ जाता है, इससे मोटे हो जाते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में अवॉइड करेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वीकनेस भी आएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। जो कि आपके डेली रूटीन वर्क के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, डेली रिक्वायरमेंट होती है। आप कुछ वर्क ना भी करेंगे, नहीं भी करेंगे, तब भी बॉडी के में आपके बॉडी के इंटरनली कई सारे सिस्टम होते हैं जो अपने आप वर्क कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट सिस्टम में वर्क करते हैं और उन वर्क को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी सोर्स क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ आई एम गोइंग टू जिम आई कैन ईट वट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, एक लोगों में मिसकंसेप्शन है कि अगर हम जिम जाएंगे तो हम जो खाना चाहें वो हम खा सकते हैं, ठीक है। जो लोग फास्ट फूड और जंक फूड खाने के शौकीन हैं, इनको आदत है ये सारे फूड एक्वायर करने की, उन लोगों को लगता है कि अगर हम जिम जाएंगे तो ये सारी गलती जो हम कर रहे हैं अभी खाकर इन सारी चीजों को, फास्ट फूड जंक फूड को, ये हमारी गलती माफ हो जाएगी, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इनटेक, ठीक है, आपने इनटेक क्या है, ठीक है, और आपका यूज क्या है, आपको इस चीज को भी बैलेंस करके रखना होगा कि आप कितने कैलोरी इनटेक कर रहे हैं अपनी डाइट में। इसका बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सपोज आप 2000 कैलोरी या 4000 कैलोरी आपने डाइट में आपने एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, ठीक है, काफी फेमस है एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, आप अपनी डाइट में एक्वायर कर रहे हैं, वहां पर जाके आप खाते हैं और उसके बाद आपने उसके थ्रू आपने 2 स्लाइस खाते हैं या 5 स्लाइस आप खा रहे हैं, उससे आपने 4000 कैलोरी अपनी बॉडी में जमा किया, ठीक है। अब उसके बाद आप जिम जाएंगे तो आपने जिम में जाने के बाद आपने जब वर्कआउट स्टार्ट किया तो आपने बर्न किया 2000 कैलोरी। तो आपने होल वर्कआउट में आपने 2000 कैलोरी बर्न किया, तो आपका रिमेनिंग जो कैलोरी है वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर होगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जितना खाएँगे, जितना खाना चाहें खा सकते हैं अगर आप जिम जाते हैं। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा कि आपने इनटेक कितना कर रहे हैं और आप वर्कआउट कितना कर रहे हैं, आप कितना बर्न कर रहे हैं कैलोरी को। अवॉइडिंग फैट, पहले जैसे कि पहले बताया कि आपको फैट जो है वो बुरा नहीं है, फैट को भी हमारी डाइट में होना ज़रूरी है, उसके बहुत सारे अलग-अलग फंक्शन हैं फैट के, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फैट हमारे लिए, बॉडी के लिए। तो हमें अवॉइड करना है किसको? सैचुरेटेड फैट को, उसके अलावा पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड, दीज आर द गुड फैट्स, तो इन्हें हम अपनी डाइट में एक्वायर करना है। नेक्स्ट थिंग इज फ्रूट्स हैज टू मच ऑफ शुगर, ठीक है। शुगर के बारे में लोग बोलते हैं कि जो बनाना वगैरह है, ठीक है, कई सारी फ्रूट हैं जो काफ़ी मीठे होते हैं, चीकू वगैरह है, ये काफ़ी मीठे होते हैं, लेकिन इनकी जो शुगर होती है वो गुड शुगर होती है, अच्छी शुगर होती है, वो आपकी हेल्थ को नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देगी। लेकिन जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं कि खाना नहीं खाएँगे हम, खाना खाने से मोटे होते हैं, तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक, बेवरेज वगैरह जो है उसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एक 200 ml की जो बॉटल है, किसी भी ब्रांडेड कंपनी की, आप उसको बेवरेज को समझ लीजिए, तो उसमें 10 टीस्पून शुगर, इतनी शुगर उसमें अवेलेबल होती है आपके बेवरेज में। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है इस तरह की आर्टिफिशियल शुगर को, जो भी आपकी आर्टिफिशियल शुगर होती है उनको आपको अवॉइड करना है। और मेन शुगर जो आपकी है फ्रूट्स वगैरह के थ्रू अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटैटो मेक्स अस फैट। कुछ लोगों का मानना है कि आलू खाने से मोटे होते हैं। पोटैटो जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट का याद रखना है। हमेशा किसी भी कोई भी फूड है, आपको उसमें हमेशा लिमिट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लिमिट, हम कितनी लिमिट में किस फूड को ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्किपिंग ब्रेकफास्ट और मील, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं,
मील को स्किप कर देते हैं कि खाना खाने से वेट हमारा कम होगा। ठीक है, बात आपकी वेट कम होगा, लेकिन उसके साथ-साथ आपका मसल मास और बोन डेंसिटी और इस तरीके के कई सारे फंक्शन जो हैं वो नेगेटिव में होंगे। ठीक है, आपकी मसल मास लूज हो जाएगा, आपकी मसल्स में वीकनेस आएगी, आपके एनर्जी रिजर्व में उसमें कमी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, सारा दिन आपको वीकनेस फील होगी और आपकी जो बॉडी फंक्शन है, नर्व इम्पल्सेस हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं होंगे। तो आपको ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट क्या है, आप सुबह फ्रेश होने के बाद आपका ब्रेकफास्ट जो होता है वो आपका फर्स्ट मील होता है, जो आपको आफ्टरनून मील तक एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो अगर आपका वो ब्रेकफास्ट अच्छा होगा तो आपका जो मन है वो भी अच्छा लगेगा, आपके वर्क में लगेगा और आपको एनर्जी भी प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। सप्लीमेंट कैन हेल्प अस टू लूज वेट। ये कई सारे ऐसे मार्केट में सप्लीमेंट्स हैं जो कि ये दावा करते हैं कि हम इन सप्लीमेंट्स के थ्रू आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे, ये पर्टिकुलर की कोई भी तरीके का सप्लीमेंट जो है वो आपकी किसी तरीके की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने डाइट को मेंटेन करना है, तब जाके ये सप्लीमेंट्स आपकी हेल्प कर पाएंगे। अदरवाइज ये सप्लीमेंट किसी काम का नहीं है, केवल आपके मनी जो है वो वेस्ट होगी इसमें। एग्स मेक अस फैट, आपने पहले जैसा you कि already told us, yes sir, that eggs what हमने आप yolk देख चुके and हैं hmm. कि एग में बहुत सारी कैलोरीज और मिनरल्स वगैरह भी हैं, तो ये आप हमारी हेल्प करते हैं। Thank you so much, sir. Thank you for the precious time and the information that you gave to us. And people who joined here, they can, if you have any queries, here the email IDs of mine and Mr. Digvijay Singh. So you can drop your queries over here. You can mail us. And if you want to join us, like for any chat or anything, you can definitely do that. Okay. Thank you so much for your precious time. And thank you people over there who joined us, who listened to us. And yes, if you have any queries, you can definitely mail us. We'll be there in touch. Thank you so much. Thank you, Thank sir. you for inviting me. Thank you, sir.